Hello students, welcome back to my YouTube channel. So let's start chapter number 12, class 10th electric current. So बच्चे ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ chapter number 12 ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। So ਬੱਚੇ first topic ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੰਟ ਬਿਜਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ, ਸਾਡਾ ਫੈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਟੀਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਰੰਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਚਾਰਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਐਕਸੈਕਟਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਅ ਮੈਟਰ ਔਰ ਅ ਸਬਸਟੈਂਸ which cause to experience a force when placed near other matter or a substance। ठीक है, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈ ਆ। ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਡ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਆ, ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੌਮ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਕੌਮ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੇਜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਬ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਐਂਡ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੱਚੇ ਬੈਲੂਨ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੂਨ ਨੂੰ ਫੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਆ ਬੈਲੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬੈਲੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੈਕੰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੀ ਰੋਡ ਲਿੱਤੀ, ਕੱਚ ਦੀ ਰੋਡ ਲਿੱਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਲਕ ਦਾ ਕਲੋਥ ਲਿੱਤਾ, ਸਿਲਕ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲਿੱਤਾ। ਰੋਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਲਕ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਰਬ ਕੀਤਾ, ਰਗੜਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ, ਸੌਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲਕ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਗਲਾਸ ਦੀ ਰੋਡ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਗੜਦੇ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਥਰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਥਰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਬੋਨਾਈਟ ਰੋਡ ਲਿੱਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਖੜ ਲੈ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਫਰ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਖੜ ਲੈ ਲਈ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਐਬੋਨਾਈਟ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਖਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਐਬੋਨਾਈਟ ਰੋਡ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਖਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਾਰਜ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਸਿਲਕ ਲੈ ਲਈ, ਸਿਲਕ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਲੈ ਲਈ। ਸੋ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਬਜੈਕਟਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਏ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਾਰਜ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਏ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ, 1 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਦੇ ਦਿਓ,
ठीक है 5 किलो प्याज दे दो मतलब ਅਸੀਂ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਕਿਲੋ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਯੂਨਿਟਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਐਸਾ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਕੂਲਮ ਕੂਲਮ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕੂਲਮ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੈਪੀਟਲ C ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੋ ਚਾਰਜ ਸੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਟਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਐਟਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਔਰਬਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰਬਿਟ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਇੱਕ ਹੀ ਐਟਮ ਦੇ कह लो पार्ट्स या छोटे छोटे सो चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन क्योंकि नैगेटिव हुंदा है इस करके असी अगे नैगेटिव साइन लगा रहे हैं नैगेटिव साइन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बच्चे वैल्यू आ तुहानू एज सच लर्न ही करनी पएगी दैन प्रोटोन के उपर भी सेम चार्ज होएगा जो इलैक्ट्रॉन के उपर चार्ज आ सेम चार्ज डिटो सेम चार्ज प्रोटोन के उपर होएगा इत्ते चार्ज कितना 1.6 × 10⁻⁻19 प्रोटोन ते भी सेम चार्ज आ 1.6 × 10⁻⁻19 पर इलैक्ट्रॉन की है नैगेटिव तो ये अगे नैगेटिव साइन पा दो प्रोटोन की है पॉजिटिव सो प्रोटोन के अगे पॉजिटिव चार्ज पा दो क्लीयर हो गया बच्चे चार्ज ऑन प्रोटोन की आ दोनों के चार्ज सेम होंगे साइन का फर्क होंगे नैक्सट आ मास ऑफ इलैक्ट्रॉन दोनों का भार जिहड़ा अलग अलग होंदा आ ठीक है जिहड़ा इलैक्ट्रॉन आ उहदा भार कुछ होर होएगा बच्चे प्रोटोन का भार कुछ होर होएगा सो आपां हुण लर्न करांगे मास ऑफ इलैक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 × 10⁻31 kg बच्चे लर्न कर लो अपनी पेज ते दा साइड ते लिख लो इनू चंगी तरीके नाल लर्न कर लो न्यूमेरिकल्स दे विच किते काम आ सकदे आ मास ऑफ प्रोटोन की है 1.67 × 10⁻27 kg सो आ तुहाडियां दो वैल्यूज़ की हो गया मास दियां सो टोटल 4 वैल्यूज़ आ दो वैल्यूज़ किहड़ियां आ चार्ज दियां और दो वैल्यूज़ किहड़ियां आ मास दियां ठीक है जी बच्चे अदरवाइज 10th लैवल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चार्ज एंड मास पर थानू पता होना चाहिए है अगे देखो इलैक्ट्रिक करंट एंड सर्किट हुण इलैक्ट्रिक करंट की चीज़ हुंदा ते सर्किट की चीज़ हुंदा है बच्चे करंट बिजली तो तुसीं सुनिया ही होना है ठीक है सो जिद्दां तुसीं कहने आ कि असीं स्विच ऑन किया कई बारी तुसीं देखते होने साडा कूलर पक्खा जिहड़े करंट छड्डदे आ ठीक है करंट मारदे आ सो इलैक्ट्रिक करंट हुंदा की आ सर्किट की चीज़ हुंदी आ ठीक है असीं इन्हां चीज़ बारे पढ़न जा रहे हैं पहले तुहानू बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आ सो बेसिक आपां पढ़ते हैं द फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर्स एंड अ कैनल्स इज नोन एज अ वाटर करंट हुण तुसीं नदियां नहरां दे विच बच्चे पानी नूं वहिंदे होए देखिया होना ठीक है सो उस पानी दे वहाअ नूं असीं वाटर करंट कह दिंदे आ वाटर करंट इन अ रिवर और अ कैनल डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सैक्शन ऑफ द रिवर्स ऑफ और कैनल ठीक है कहंदे डिपेंड किते करदा आ वाटर करंट किते डिपेंड करता एरिया कितना आ कि थोड़ी नहर पतली आ या थोड़ी नहर चौड़ी आ ठीक है इस चीज़ से भी डिपेंड करता है अगे देखो इफ द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सैक्शन ऑफ द रिवर इज लार्ज दैन वाटर करंट इज हाई मान लो इस नदी के विचों बहुत तेजी के नाल पानी बह रहा ठीक है बहुत तेजी नाल पानी जा रहा तो थोड़ा वाटर करंट की होएगा हाई होएगा जे थोड़ा जिहड़ा पानी आ वो स्लो जा रहा घट अमाउंट दे विच जा रहा तो करंट भी की होएगा स्लो होएगा ठीक है जे पानी का वहाअ थोड़ा आ तो करंट भी घट होएगा जे पानी का वहाअ तेज आ तो करंट भी ज़्यादा होएगा इसी तरह सिमिलरली द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलैक्ट्रिक करंट हुण इसी तरह तुहाडे घरां दे विच बच्चे तार होगी तारां हैगियां ना अपने घरां दे विच सो इह तार दे अंदर की आ नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स हुंदे आ ठीक है सो फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर जिहड़ी आ तार आ वायर आ बच्चे नूं कंडक्टर कहा जांदा ठीक है
इस कंडक्टर दे अंदरों जिहड़ा चार्ज फ्लो हो रहा, इलैक्ट्रॉन फ्लो हो रहा, उहनूं असीं इलैक्ट्रिक करंट कह दिंदे आ। इन अ मैटैलिक कंडक्टर ईच एटम हैज़ अ वन और अ मोर दैन वन लूजली बाउंड इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, हर एक एटम को कोई ना कोई इलैक्ट्रॉन, फ्री इलैक्ट्रॉन हुंदे आ। ठीक है, these free electron are considered as free electrons and they are move from one part to the other part। ਜਿਹੜੇ एटम ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਆ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਸੀ, ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ठीक है, आही फ्री इलैक्ट्रॉन जिहड़ा है एक जगह तो दूसरी जगह ते मूव करदा। बच्चे पहले ऑर्बिट दे अंदर दो इलैक्ट्रॉन हो सकते हैं, इहदा मतलब इन्हां ने फ्लो नहीं करना। ध्यान नाल सुन लो, पहले ऑर्बिट दे विच दो ही इलैक्ट्रॉन हुंदे, इन्हां ने फ्लो नहीं करना। जिहड़ा सैकेंड ऑर्बिट आ, दूसरा घेरा आ, दूसरे घेरे दे अंदर 8 इलैक्ट्रॉन्स हो सकदे आ। पहले ऑर्बिट दे विच 2 इलैक्ट्रॉन्स हो सकदे आ, सैकेंड ऑर्बिट दे विच 8 इलैक्ट्रॉन्स हो सकदे आ। ठीक आ, सो जे तां 8 दे 8 फुली फिल्ड आ तां की होगा, उन्हां चों भी किसी इलैक्ट्रॉन ने मूव नहीं करना। हुण इत्थे की आ, कल्ला एक इलैक्ट्रॉन आ, एक इलैक्ट्रॉन मतलब फ्री आ, ये आज़ाद आ, घुम सकदा आराम नाल। ठीक है, अगर इत्थे 8 इलैक्ट्रॉन्स हुंदे तां ओह मूव नहीं कर सकदे सी। सो इत्थे एक इलैक्ट्रॉन आ या 2 इलैक्ट्रॉन्स आ, तो एक जगह तो दूसरी जगह ते मूव कर सकदी आ। द फ्री इलैक्ट्रॉन्स इन अ मैटैलिक कंडक्टर हैज़ नेगेटिव चार्ज। जिहड़े फ्री इलैक्ट्रॉन्स हुंदे आ बच्चे, उन्हां दे उपर किहड़ा चार्ज हुंदा आ, नेगेटिव चार्ज। वैसे भी आपां पढ़ चुके हैं, इलैक्ट्रॉन दे उपर नेगेटिव चार्ज हुंदी आ। फ्री इलैक्ट्रॉन्स मूव थ्रू आउट द कंडक्टर, पूरे कंडक्टर दे अंदर। मान लो आ पतली जी तार आ, पूरे कंडक्टर दे अंदर घूमदे आ जिहड़े फ्री इलैक्ट्रॉन्स हुंदे आ। सो दे आर द करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स मतलब जिहड़े करंट नूं कैरी करदे होण। ठीक है, फ्री इलैक्ट्रॉन एक जगह तो दूसरी जगह ते मूव करदे, दा मतलब ओही करंट नूं एक जगह तो दूसरी जगह ते लैके जा रहे आ। इस करके इन्हां नूं करंट कैरियर्स बोलिया जांदा। डिफरेंट कैरियर्स इन अ मैटैलिक कंडक्टर आर नोन एज कंडक्शन इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, द फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर कंसिस्ट एन इलैक्ट्रिक करंट। ठीक है, यही फ्री इलैक्ट्रॉन जिहड़े कंडक्टर दे अंदर फ्री इलैक्ट्रॉन्स पए हुंदे आ, इन्हां नूं ही इलैक्ट्रिक करंट कहा जांदा आ। क्लीयर हो गया बच्चे आ पूरी चीज़? आ पूरी चीज़ नूं तुसीं ध्यान नाल समझना आ, चाहे इहनूं कॉपी ते उतारिओ ना, बट इस चीज़ नूं बहुत केयरफुली समझ लो, इलैक्ट्रिक करंट की हुंदा ते इलैक्ट्रिक सर्किट की हुंदा। हुण अगे देखो, इलैक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिखन लग्गियां बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ, ये तुसीं अपनी नोटबुक ते उतार लेना। ठीक है, तुसीं इत्थों चैप्टर स्टार्ट कर सकदे आ। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज थ्रू द क्रॉस सैक्शन ऑफ अ कंडक्टर। एक कंडक्टर दे विचों कितना चार्ज फ्लो हो रहा, लैट द चार्ज इज क्यू। मान लो आ साडे को तार सी, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰਜ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, Q ਚਾਰਜ ਜਾ ਰਿਹਾ, flowing through the cross section of a conductor at time t। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ, T ਸੈਕਿੰਡ, T ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ, I is equals to Q divided by T। ਕਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਟੋਟਲ charge flowing divided by time taken t। so q divided by t। clear हो गई? हुण बच्चे q किहदे इक्वल हुंदा, सो q किहदे इक्वल हुंदा आ, ne दे। ये प्रॉपर्टी आ बच्चे, इलैक्ट्रिक चार्ज दी प्रॉपर्टी आ कि जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज नूं रिपैल करदा, धक्का मारदा, नेगेटिव नूं धक्का मारदा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव नूं अट्रैक्ट करदा। आ अट्रैक्ट करदे आ, जे सेम चार्जिस होणगे तां रिपैल करदे आ। ठीक है, उच ही एक प्रॉपर्टी आ कि क्यू दी वैल्यू NE हुंदी आ। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब क्यू दी वैल्यू ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, NE। सो I ਦਾ आंसर कितना आ जाना, NE डिवाइडेड बाय T। सो आ ਤੁਹਾਡੀ करंट ਦੀ वैल्यू आ गई। ठीक है, दैन SI यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट इज अंपेयर। इलैक्ट्रिक करंट नूं काहदे विच मैजर किया जाता है, अंपेयर्स दे विच। अंपेयर की डेफिनेशन की आएगी, 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। ठीक है, सो द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज कॉल्ड 1 अंपेयर। उदों ही 1 अंपेयर कवांगे वैन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन 1 सेकेंड। जो 1 कूलम चार्ज 1 सैकेंड दे विच फ्लो होवे। क्लीयर होगी बच्चे डेफिनेशन?
सो आ तुहाडी डेफिनेशन आ बच्चे अंपेयर्स की डेफिनेशन कल्ली कई बारी 1 मार्क्स की आ जाती है। सो तुसीं इहनूं ध्यान नाल प्रिपेयर करना है। ठीक है, तुसीं अपनी कॉपी के उपर आही चीज़ लिखनी है। बाकी डायग्राम वगैरह बच्चे तुहानूं समझाउण दे लई बनाई गई सी, तुसीं अपनी कॉपी ते सिर्फ इन्ना ही चीज़ लिखनी आ। सो असीं नैक्सट पढ़ते हैं पंजाबी मीडियम वालियां दे लई बच्चे आ चीज़ लिखिया डेफिनेशन ऑफ इलैक्ट्रिक करंट, सेम उही चीज़ आ, बस इस थोड़ा जिहा पंजाबी दे विच टाइप कर दिता गया। नैक्सट अंपेयर आ, अंपेयर उत्थे इंग्लिश दे विच टाइप किया होया सी, समझा तुहानूं दिता आ पंजाबी दे विच टाइप किया जिहड़े पंजाबी मीडियम वाले बच्चे आ। ठीक है, सो नैक्सट देखो डायरैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक करंट। हुण इलैक्ट्रिक करंट की डायरैक्शन किधर नूं होएगी बच्चे, ध्यान दिओ जिहदे विच एक बैटरी भी लगी होवे ते एक कंडक्टर भी लग्या होवे, उहनूं तार दे नाल जोड़िया गया होवे, किसी वायर दे नाल जोड़िया गया होवे, एक बैटरी लगी आ तुहाडा कौन आ कंडक्टर, कोई कंडक्टर आ की आ वायर, एक तार आ और बैटरी। जो इन्हों इस तरह ना सैट किया जाता इनू सर्किट बोल देंगे आ। ठीक है, क्लीयर हो गया सर्किट की आ। हुण असीं पढ़न लगे हाँ डायरैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक करंट, डायरैक्शन किधर नूं हुंदी आ बच्चे। आ चीज़ भी तुहानूं अपनी कॉपी के उपर लिखण की जरूरत नहीं है, पर ध्यान नाल समझ लेना, हो सकता एक्स्ट्रा क्वेश्चन च कदे पूछ लिया जाए। एज अ कन्वेंशन द डायरैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक करंट इन द डायरैक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, because at a time of discovery of electricity the electric current was supposed to flow due to the positive charge। कहंदे जदों भी इलैक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी हुई उदों असीं ये सपोज किया भी जिहड़ा चार्ज आ तुहाडा करंट आ वो पॉजिटिव टू नैगेटिव वाल फ्लो करदा। इहदा मतलब पॉजिटिव तो निकलिया, आ देखो एरो उपर नूं बनाया होया, तो किधर नूं आऊगा नैगेटिव वाल। सो नीचे नूं आ गया एरो, सो इधर नूं पॉजिटिव टू नैगेटिव जिहड़ा आ बैटरी तो तुहाडा चार्ज फ्लो करदा, ऑलवेज पॉजिटिव टू नैगेटिव। हाउएवर इन अ कंडक्टर कनेक्टेड टू अ सेल द इलैक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ नैगेटिव चार्ज इलैक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। पर बच्चे जिहड़ा ये चार्ज आ वो किहदी वजह नाल फ्लो हो रहा, इलैक्ट्रॉन्स की वजह दे नाल। ठीक है, हुण ध्यान नाल अगली लाइन पढ़नी है। द इलैक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर फ्लो फ्रॉम द एंड ऑफ द कंडक्टर कनेक्टेड टू अ नैगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ठीक है, इलैक्ट्रॉन कौन छड्डदा आ, नैगेटिव टर्मिनल। बच्चे आ वड्डी वाली डंडी नूं पॉजिटिव टर्मिनल कहंदे आ, छोटी वाली डंडी नूं नैगेटिव टर्मिनल कहंदे आ। जिहड़े इलैक्ट्रॉन आ वो नैगेटिव टू पॉजिटिव जांदे। हुण ध्यान नाल देखो आ कंडक्टर है, ठीक है, आ वाला कौन आ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर दे अंदर की आ छोटे छोटे इलैक्ट्रॉन्स पए आ। इलैक्ट्रॉन किधरों निकले नैगेटिव तो, इहदा मतलब ये इधर नूं फ्लो करनगे। क्लीयर हो गई आ चीज़ बच्चे। जिहड़ा चार्ज आ करंट आ आई करंट हमेशा पॉजिटिव टू नैगेटिव मूव करदा। क्लीयर हो गई। इलैक्ट्रॉन हमेशा नैगेटिव तो निकलदा ते पॉजिटिव च चला जांदा। इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चे, हमेशा कन्फ्यूज रहंदे मैडम सानू पता नहीं चलिया कि इहदा डायरैक्शन इधर क्यों बनाई आ ते आह इधर नूं क्यों मूव कर रहा। ठीक है, जिहड़ा करंट आ वो हमेशा पॉजिटिव टू नैगेटिव मूव करदा, जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स आ वो हमेशा नैगेटिव टू पॉजिटिव मूव करदे आ। ठीक है, आगे देखो। Hence, the direction of electric current is opposite to the direction of flow of electron। इस करके देख लो हुण ध्यान नाल पॉजिटिव टू नैगेटिव इधर नूं जा रहा सी, पॉजिटिव तो नैगेटिव वाल करंट आई जा रहा सी, बट इलैक्ट्रॉन नैगेटिव टू पॉजिटिव उल्टे जा रहे आ, इधरों इधर नूं जा रहे आ, इधर नूं। ठीक है, इहदा मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन च फ्लो हो रहा। इन अदर वर्ड्स कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नैगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल ऑफ द बैटरी थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है बच्चे, आ वाली लाइन इंपॉर्टेंट आ, ये अपनी कॉपी के उपर लिख लेना, चाहे आप पूरा आर्टिकल ना लिखना, आ डायग्राम बना के तुसीं आ हल्की जी लाइन लिख लेना ताकि तुहानूं याद रहे कि करंट किहड़ा किधर नूं फ्लो करदा। अगे देखो इलैक्ट्रिक सर्किट के बारे पढ़ते हैं। हुण इलैक्ट्रिक सर्किट की चीज़ आ। एन इलैक्ट्रिक सर्किट इज़ अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। कंडक्टिंग पाथ क्यों कहने हैं, क्योंकि जिहड़ा सैल लवांगे वो भी कंडक्टिंग होना चाहिए, इलैक्ट्रॉन फ्लो करन च हैल्प करदा होना चाहिए। जिहड़ियां तार असीं वायरस यूज़ करांगे वो भी कंडक्टिंग होणियां चाहिदियां आ। जिहड़ा असीं अगे बल्ब या कोई भी चीज़ असीं नाल लगा रहे हैं, मोबाइल कह लो, अपनी फ्रिज कह लो, टीवी कह लो, वो भी सारे कंडक्टिंग होने चाहिए, बिजली ते चलण वाली होनी चाहिए। कंटेनिंग अ सोर्स ऑफ इलैक्ट्रिक एनर्जी।
इलैक्ट्रिक एनर्जी मतलब कोई सैल लै लो चाहे कोई बैटरी लै लो, ठीक है। जिद्दां डायग्राम तुहानूं दिख रही है, असीं इहदे विच आ की लिता सैल, ठीक है। सैल या बैटरी लै लो। और एक डिवाइस, किहड़ा डिवाइस लिता? बल्ब, ठीक है। एक बल्ब लै लिया। यूटिलाइजिंग द इलैक्ट्रिक एनर्जी, जो इलैक्ट्रिक एनर्जी नूं यूटिलाइज कर रहा। मान लो आ पॉजिटिव टर्मिनल आ नैगेटिव। वैसे भी बच्चे तुहाडे घर विच बहुत सारे सैल होणगे, तुसीं सैल भी देखे होणगे। सैल नूं कदे ध्यान नाल देखियो, जे तुहाडा घर सैल पिया तां ध्यान नाल बच्चे देखना, इस तरह नाल तुहाडा सैल आ तां एक पासे पॉजिटिव टर्मिनल ते एक पासे नैगेटिव टर्मिनल बणिया हुंदा। इहदे उपर एक टर्मिनल लिखिया हुंदा और इहदे नीचे एक टर्मिनल लिखिया हुंदा। सो ध्यान नाल इस चीज़ तुहाडे घर च अगर सैल पए तां हुणे जाके देख के आओ कि इदां हैगा आ कि एक पासे पॉजिटिव आ ते एक पासे नैगेटिव आ, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अ continuous and a closed conducting path connected to a cell and a bulb is called an electric circuit। बच्चे मैं दो डेफिनेशनस लिख दित्तियां इंग्लिश मीडियम दे विच, तुसीं दोनां दे विचों इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स दे लई दोनां विचों कोई एक कर लो, एक आया दोनों चों एक लर्न कर लो, ठीक है। नैक्सट आ कंपोनेंट्स ऑफ इलैक्ट्रिक सर्किट। सो असीं इलैक्ट्रिक सर्किट दे कंपोनेंट्स देखण लगे हां। देखो द मेन कंपोनेंट ऑफ इलैक्ट्रिक सर्किट, ते इहदे विच बेसिकली तां बच्चे तीन ही यूज़ हो रहे, एक कौन आ? सैल, इलैक्ट्रिक सोर्स जिन्हें उन्होंने बिजली देनी आ, ठीक है। कंडक्टर की है तुहाडियां तारां, ठीक है। आ वालियां की है तुहाडियां कंडक्टर। लास्ट वन की आ? स्विच। स्विच मतलब कि तुसीं इहनूं कनैक्ट कीता है कि नहीं कीता, जिहड़ा तुहाडे घरां दे विच मान लो बच्चे अपने घर दे स्विच देख लो, ठीक है। तुहाडे घर दा पक्खा लग्गिया होया, पक्खे तो लैके तुहाडे स्विच तक अंदरों अंदरी कोई तारां भी लग्गियां होईयां, ठीक है। सो याद रखण दा बेस्ट तरीका है, नंबर 1 कौन आ? स्विच। स्विच नूं ऑन कीता, करंट फ्लो होण लग गया, किहदे विचों? तारां दे विचों, ठीक है, कंडक्टर दे विचों। पहले नंबर ते कौन सी? स्विच। दूसरे नंबर ते कौन आ गईयां? तारां, ठीक है। सो पक्खा चल पिया तुहाडा, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट लग्गिया होया अगे, कोई ना कोई अगे इंस्ट्रूमेंट लग्गिया होया जिहड़ा चल पिया। जे टीवी है तो टीवी चल पिया। मान लो पिछों लाइट ही है नहीं तो देख लो स्विच भी हैगा, तारां भी हैगियां, पक्खा भी हैगा, फिर भी पक्खा नहीं चलना। क्यों नहीं चलिया? क्योंकि पिछों ही बिजली नहीं आई, इलैक्ट्रिक सोर्स पिछे कोई है ही नहीं। क्लीयर होगी हुण चीज़ बच्चे? 4 चीज़ां हुंदा इलैक्ट्रिक सोर्स जिहड़ी पिछों करंट आ रहा, ठीक है। कंडक्टर कौन आ? जिहड़ा तुसी वायर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्विच किहड़ा आ? जिहड़ा तुहाडे घर दे बटन लगे हुए आ। इंस्ट्रूमेंट किहड़ा आ? जिहड़ा पक्खा, टीवी, फ्रिज जो भी तुहाडे घर दे विच इंस्ट्रूमेंट लग्गिया होया। क्लीयर हो गया? इदां करके अगर आ पूरा सैटअप हो जांदा बच्चे, इहनूं असीं की बोल दिंदे आ? इलैक्ट्रिक सर्किट। आ पूरा पेज तुसीं एज सच बच्चे लिखना आ। क्वेश्चन आ जांदा हुंदा पंजाब बोर्ड दे विच, व्हाट इज इलैक्ट्रिक सर्किट एंड राइट इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। बच्चे नैक्सट देखो, जो तुसी क्वेश्चन आंसरस लर्न करने आ, अदरवाइज जो तुसी लैक्चर सुनिया आ, इहदे विचों भी जिहड़ियां चीज़ां मैं तुहानूं नोट डाउन करन लई कहा गया, वो चीज़ां नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी दे उपर। सो क्वेश्चन किस फॉर्म दे विच आ सकदे आ? व्हाट इज एन इलैक्ट्रिक सर्किट? इलैक्ट्रिक सर्किट की आ? आपां हुणे पिछे एक्सप्लेन करके हटे आ, विद डायग्राम एक्सप्लेन करके हटे आ, तां तुसी ਉਹ लिख दूंगे तो ज़्यादा वधिया आ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ज़्यादा थियोरी याद ਕਰਨ ਵਿੱਚ डिफिकल्टी आती है, ਉਹ शॉर्ट फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ लिख सकते हैं। इट इज़ द क्लोथ path through which an electron flow readily, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ electrons flow ਕਰਦੇ ਆ। when a conductor is connected to a battery, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, the electrons move from the negative terminal to the battery to the positive, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ पॉजिटिव, ठीक है। करंट कित्थों मूव करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है जी। हाउएवर कन्वेंशनल करंट I is considered to flow positive to negative terminal। क्लीयर हो गया जी? इन्ना लिख के तुसी वो बैटरी बना के उहदे नाल तार जोड़ देती, अगे फर्दर बल्ब जोड़ दिता, ठीक है। आ डायग्राम बनानी जरूरी है बच्चे, तुसी ये डायग्राम जरूर बना देना। नैक्सट आ डिफाइन यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट। इलैक्ट्रिक करंट दे विच यूनिट्स की? ऐसा यूनिट की सी? अंपेयर। पिछे तुहानूं प्रॉपर एक्सप्लेन किया होया, तुसी वो सारा उही लिखना है, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स दैट कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज विच किन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स हुंदे आ, असीं ये पता करना है, ठीक आ। इहदा मतलब असीं एन पता करना। असीं पिछे एक फॉर्मूला पढ़िया सी, क्यू किहदे इक्वल हुंदा आ? एन ई दे। आ पढ़िया सी। इत्थे उन्होंने क्या आ? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन मतलब एन पता करना, नंबर ऑफ
इलैक्ट्रॉन्स। ਅਸੀਂ n पता करना, सो n किद्दां पता करांगे, सोल्यूशन के अंदर की लिखांगे n इज इक्वल्स टू आ बच्चे e q के पैर च ले जाओ q डिवाइडेड बाय e। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ आ फॉर्मूला आ गया। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ किया 1 कूलम चार्ज ਨੂੰ कन्वर्ट करना, ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਨੂੰ 1 कूलम चार्ज। ਹੁਣ लिखो वेयर q इज इक्वल्स टू 1 कूलम, ठीक है। e की वैल्यू बच्चे कितनी आ, इलैक्ट्रॉन आ, ठीक है, कोई इलैक्ट्रॉन आ, ਇਹਦਾ मतलब इलैक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आ 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 19 कूलम। क्लीयर हो गया बच्चे। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ मतलब Q ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, E ਵੀ ਪਤਾ, ठीक है। सो ਅਸੀਂ इक्वेशन नंबर 1 ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ जब पुट करांगे साडे को n की वैल्यू कितनी आ जाऊगी, n की वैल्यू आ जाऊगी q की जगह ते की पुट किया 1 डिवाइडेड बाय e की वैल्यू कितनी आ 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 19। बच्चे माइनस 19 नूं उपर लै जाओ, जो उपर लैके जाओगे तो प्लस के 19 आ जाएंगे 1.6। हुण असीं इहनूं लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 19। जो बच्चे इनू सॉल्व करूँगे 1 नूं 1.6 नाल डिवाइड करूँगे तो आ जाऊगा 0.625 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 19। हुण देखो साडा पॉइंट्स दे विच आंसर आ रहा, बट सानू पॉइंट दे विच आंसर नहीं चाहिए। आ पॉइंट एक अगे शिफ्ट कर दो, जो अगे शिफ्ट करांगे तो आ जाऊगा 6.25, पिछों की है एक पावर घट जूगी, इहदा मतलब पहला कितना सी 19, हुण कितना हो गया 18, ठीक है। सो इन्ने इलैक्ट्रॉन्स बच्चे आ थोड़ा आंसर आ गया, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 6.25 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 18। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ पॉइंट शिफ्ट ਕਰਨ ਬਾਰੇ नहीं पता लग्या ध्यान ਨਾਲ ਇੱਥੇ साइड ਤੇ समझ लो किदां कीता। ਹੁਣ देखो बच्चे 0.625 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 19 सी, ਇਹਦਾ मतलब डेसीमल हटा दो, डेसीमल हटाता की आ गया नीचे 1000, डेसीमल तो हटाना आंदा ਤੁਹਾਨੂੰ सब ਨੂੰ, ठीक है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, आ वाली एक 0 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ वाली एक 0 ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ 0 ਸੀ 19 0 ਆ, ठीक है। ਹੁਣ 19 0 ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ 19 zeros ਆ। ਹੁਣ 19 0 ਇੱਕ 0 ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ 0 ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਗਈ, मतलब कि ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ 19, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 18, ਇਹਦਾ मतलब नीचे कितना रह गया 100, ठीक है जी। हुण डेसीमल च फिर कन्वर्ट कर दो, बन गया 2.5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 18, आ गया थोड़ा सेम आंसर, ठीक है बच्चे। सो आ सिर्फ थानू समझाया तां ही अलग पेन दे नाल ही मैं लिख दिता, अदरवाइज तुसी इन्ना कुछ नहीं करके आना, तुसी डायरैक्ट आही आंसर लिख के आना कि इस तरह कन्वर्ट हो गया। आ वाली चीज़ तो मैं थानू जस्ट समझाने दे लई कीती आ, ये तुसी कह लो अपने पेपर दे विच नहीं करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ, what are positive and negative charge and how these produce। पॉजिटिव और नैगेटिव चार्जिस की होंगे, सानू पता भी दो तरह के चार्जिस होंगे, एक पॉजिटिव और एक नैगेटिव। हुण ध्यान दो, द चार्जिस प्रोड्यूस इन अ ग्लास रॉड, आपां हुणे हुणे डायग्राम चो भी पढ़ के हटे हैं, जो ग्लास रॉड नूं असीं सिल्क दे नाल रब करते हैं, ठीक आ, तां की हुंदा आ जिहड़ी सिल्क आ उहदे उपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। इसी तरह नैगेटिव चार्ज की सी, जो एबोनाइट रॉड नूं असी बिल्ली दी खल दे नाल रब करते हैं तो एबोनाइट रॉड दे उपर नैगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है जी। सो बच्चे आ दो चीज़ां तुसी ध्यान नाल देखनियां आ, जिहड़ी असी पिछे हुणे हुणे वीडियोज़ दे विच पढ़ के हटे हैं, उही चीज़ आ, सिर्फ चार्जिस का फर्क आ। द चार्जिस प्रोड्यूस्ड इन अ ग्लास रॉड वैन इट इज़ रब्ड विद अ सिल्क रॉड इज़ पॉजिटिव चार्ज। ग्लास रॉड के उपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता, इत्थे एबोनाइट रॉड के उपर नैगेटिव चार्ज आ जाता। क्लीयर हो गई बच्चे आ चीज़। सो बच्चे इस पूरे लैक्चर दे विच अगर तुहानूं कोई डायग्राम कोई मैथमैटिकल पोर्शन ना क्लीयर होया होवे, कोई थ्योरी विच कोई कन्फ्यूजन होवे तां तुसीं पुछ सकदे आ। थैंक यू सो मच। अगर बच्चे तुहानूं वीडियो अच्छी लगी होवे, लैक्चर अच्छे तरीके नाल समझ लग्या होवे तां वीडियो जरूर लाइक करना। थैंक यू सो मच।